फॉलो द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज जूल। बहुत ही कॉमन सी किताब है, आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी ब्रांच हम डिस्कस करेंगे तो उसके लिए अलहदा से बुक्स भी मैं आपको सजेस्ट करता जाऊंगा, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप पर आपके साथ सॉफ्ट कॉपी जो है वो उसकी मैं शेयर कर दूंगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू start phonetics. All right, so we define phonetics as it is the study of speech sounds. Very simple. So as we discussed yesterday, the properties of language. So one of those properties was that we use sound signals in language. ज़ुबान के अंदर हम sound को इस्तेमाल करते हैं. So all the words are basically sounds. They are made up of different sounds. ठीक है. So ये जो sounds की study है, इसको हम phonetics कहते हैं. And we say that study of speech sounds. So the sounds that we use in our speech, the sounds that we use in our लैंग्वेज बोलने में जो साउंड हम इस्तेमाल करते हैं उसकी स्टडी को फोनेटिक्स कहा जाता है। बिकॉज साउंड्स जो हैं बहुत सारी हम मीनिंगलेस साउंड्स भी प्रोड्यूस करते हैं। सो वी आर नॉट कंसर्न विद दो साउंड्स, वी आर ओनली कंसर्न विद द साउंड दैट वी use in our actual speech. So it is the study of speech sounds. Okay. So it is divided into three more branches. Articulatory phonetics, it is a study of the production of sounds. Then we have auditory phonetics, so we define it as it is the study of the reception of sounds. And third branch of phonetics or part of phonetics is what we call acoustic phonetics. It is the study of speech, it is the study of the properties of sounds. We are going to explain them. So the most common of these branches, these are, you can call them sub branches or parts of phonetics.
In articulatory phonetics, we study the process behind the production of sound. So we answer the question that how actually we produce these different sounds. For example, as yesterday, I said that for producing b sound, you have to close your lips. Here, you have to stop the passage of air, and then you release the passage of air, and that's how you produce b sound. So for each sound, we are going to study that what is going on in our mouth, what is going on in our vocal cords. So what is happening while we are producing different sounds. So the study of the processes that are behind the production of sound, we call it articulatory phonetics. So how actually we articulate different sounds, इसकी study को हम articulatory phonetics कहते हैं, और हमारा focus obviously articulatory phonetics पर ही होगा. But you must know the other two things as well. The other is auditory phonetics. So auditory phonetics is the study of the reception of sound or perception of sound, how actually we perceive sounds. तो इसमें बोलने की बजाय फोकस जो है किस चीज़ पर है, सुनने के ऊपर है. ठीक है, कि हम साउंड्स एक बंदा बोल, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, सो आप इन साउंड्स को परसीव कर रहे हैं, आपके माइंड तक सिग्नल्स जो हैं वो पहुँच रहे हैं थ्रू योर ईयर्स ऑफ कोर्स. तो वहाँ से आपका माइंड जो है वो इंटरप्रेट कर रहा है कि कौन सी साउंड सुनी जा रही हैं, फिर उन साउंड्स के मीनिंग्स क्या हैं. तो ये सारा प्रोसेस जो है वो चल रहा है आपके माइंड में. ठीक है, तो इसकी स्टडी को हम ऑडिटरी फोनेटिक्स कहते हैं, कि साउंड्स को हम सुनते किस तरीके से, परसीव कैसे करते हैं. द थर्ड इज एकूस्टिक फोनेटिक्स. इट स्टडीज द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड. ठीक है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, दैट इज मोर साइंटिफिक काइंड ऑफ थिंग, कि जो आवाज़ होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं पिच, जो है हम कहते हैं कि औरतों की साउंड की जो पिच होती है वो ज़्यादा होती है. ठीक है, ज़्यादा श्रिलिंग किस्म की जो है साउंड होती है. मर्दों की आवाज़ जो है वो ज़्यादा भारी होती है, हॉर्स किस्म की आवाज़ जो है वो होती है. ठीक है, बच्चों की आवाज़ भी इसी तरह से श्रिलिंग होती है. सो ये जो साउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको जब हम डिस्कस करते हैं तो इसको एकूस्टिक फोनेटिक्स कहते हैं. इसको आप तीनों चीज़ों को यूं भी देख सकते हैं कि जब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं साउंड को कैसे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज़ आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स. आप लोग जो सुन रहे हैं किस तरह से साउंड्स को परसीव कर रहे हैं, ऑडिटरी फोनेटिक्स. और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर, जिसमें साउंड जो है वो वेव्स की सूरत में ट्रेवल कर रही है. ठीक है, तो ये जो दरमियानी फासला है कि जिसमें साउंड जो है वो स्पीकर से ट्रेवल करके लिसनर तक पहुंच रही है, इसकी स्टडी को हम एकूस्टिक फोनेटिक्स कहते हैं. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, so these are three branches of linguistics. Our focus will be on articulatory phonetics, production of sound. Okay, so first of all, we are going to discuss speech organs. Organs, aza. So the organs which are involved in the production of sound are called speech organs. ऐसे organs जो कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड में, साउंड जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, इन सारे ऑर्गन्स को हम स्पीच ऑर्गन्स कहते हैं. ठीक है, बात की समझ आ रही है ना? तो दीज आर स्पीच ऑर्गन्स. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दी स्पीच ऑर्गन्स वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लंग्स, the most important and basic thing in the production of sound, without which we cannot produce any sound, because air comes from our lungs. So we keep inhaling air, exhaling air. Okay? हम सांस लेते हैं, अंदर ले जाते हैं एयर को, फिर हम दोबारा उसे बाहर की तरफ जो है वो पुश करते हैं, निकालते हैं. सो ये जो प्रोसेस हो रहा है,
कि साउंड जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें भी यहाँ से एयर जो है वो स्टार्ट होती है, हमारे यहाँ थ्रोट में आती है, फिर हमारे माउथ में आती है, यहाँ पर डिफरेंट प्लेसेस पर उसको मॉडिफाई किया जाता है, जिस जगह पर मॉडिफाई किया जाता है उससे एक अलग साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, सो लंग्स सबसे क्योंकि सोर्स जो है एयर की वो हमारे पास लंग्स हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आधा हमारे पास होते हैं वो लंग्स होते हैं। लंग्स के बगैर साउंड्स को प्रोड्यूस करना ऑब्वियसली हमारे लिए मुमकिन नहीं होता है। ठीक है, ओके, जैसे हम ऊपर की तरफ आते हैं, लंग्स से ऊपर की तरफ जब हम आते हैं तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ आवर लैरिंग्स। If you have read biology in your intermediate, so you will know about larynx. ठीक है, आपको अपने हल्क में ये जो उभरी हुई एक जगह जो है वो फील होती है। ठीक है, दैट इज वेयर लैरिंक्स इज लोकेटेड। अगर आप यहाँ पर देखें तो एक बाहर की तरफ ज़रा सी निकली हुई जगह जो है आपको फील होती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लैरिंक्स। इट इज आल्सो कॉल्ड एडम्स एप्पल। सो लैरिंक्स की बजाते खुद इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन लैरिंक्स के अंदर जो चीज़ मौजूद होती है वो स्पीच प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट है। तो लैरिंक्स के अंदर कौन सी चीज़ होती है? वॉइस बॉक्स और वोकल कॉर्ड्स, वोकल फोल्ड्स, जो भी सारे नाम जो हैं इन्हीं के लिए इस्तेमाल होते हैं। वोकल कॉर्ड्स और फोल्ड्स। So these vocal cords basically they act like our lips। जिस तरह ये हमारे लिप्स हैं ना, तो ये रेगुलेट करते हैं कि हमारे मुंह के अंदर कौन सी चीज़ जाएगी और कौन सी चीज़ बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक है, जस्ट लाइक अ डोर, दरवाज़ा जैसे होता है रूम का, तो इसी तरह से ये हमारे लिप्स यहाँ पर जो लोकेटेड हैं बाहर से अंदर से आने वाली चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर हमारे थ्रोट में, लैरिंक्स में ये जो वोकल फोल्ड्स हैं वो भी इसी तरह डोर का काम सर अंजाम देते हैं। दे कैन बी क्लोज्ड एंड दे कैन बी ओपन। यू कैन क्लोज देम इफ़ यू वांट टू, उनको बंद किया जा सकता है, तो इन दैट केस द पैसेज ऑफ एयर इज स्टॉप्ड। ठीक है, और उनको खोला भी जा सकता है। जिस तरह हम लिप्स को बंद कर देते हैं, खोल देते हैं, तो इसी तरह से वोकल फोल्ड्स जो हैं उनको भी रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक है, वोकल फोल्ड्स जो हैं अगर आप उनकी शेप जो है उसको हम डिस्कस करें, तो जिस तरह हमारे लिप्स होते हैं इसी तरह की शेप है तकरीबन मोरल है। ठीक है, ये जो है हमारा ये बाहर वाला हिस्सा है। ठीक है, आगे वाला हिस्सा जो है, और ये जो है उसका पीछे वाला हिस्सा है, वोकल फोल्ड्स। सो दीज आर टू वोकल फोल्ड्स। अब ये दोनों वोकल फोल्ड्स जो हैं, जो इनका आगे वाला हिस्सा होता है वो आपस में मिला हुआ होता है। ठीक है, इकट्ठा होता है ये आगे वाला हिस्सा जो है, तो यहाँ पर ये दोनों वोकल फोल्ड जो हैं आपस में इकट्ठे होते हैं, मिले हुए होते हैं। जो इनका पीछे वाला हिस्सा होता है इसको खोला भी जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है। ठीक है, ये अलग अलग है। तो आप देख रहे हैं कि इनके दरमियान में डिस्टेंस मौजूद है, जबकि आगे आकर ये दोनों जो हैं आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, बात की समझ आ रही है ना? अब इनके दरमियान जो ओपनिंग है जहां से एयर जो है वो गुजरती है, ठीक है, इस ओपनिंग को क्या कहा जाता है? यस, द ओपनिंग बिटवीन दीज वोकल फोल्ड्स, यस, ग्लॉटिस। ठीक है, दैट इज ग्लॉटिस। सो द ओपनिंग बिटवीन द वोकल साउंड्स जहाँ से एयर गुजर सकती है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ये जो स्पेस है इनके दरमियान में इसको हम ग्लॉटिस कहते हैं।
Now, these vocal folds may have four different positions, resulting in different types of sounds. इनकी जो है चार different positions हो सकती हैं. किस तरह से? पहली पोजीशन यही है कि जिसमें आप देख रहे हैं कि दीज वोकल फोल्ड्स आर वाइड अपार्ट, बिल्कुल वो खुले हैं, एक दूसरे से काफ़ी फासले पर हैं. ग्लॉटिस जो है तो वो हमारे पास बिल्कुल ओपन है. ठीक है, तो जब ये दोनों एक दूसरे से फासले पर होते हैं, व्हेन दे आर वाइड अपार्ट, सो ऑब्वियसली एयर फाइंड द फ्री पैसेज टू कम टू आवर माउथ. ठीक है, यहाँ से एयर जो है आसानी के साथ गुजर के हमारे माउथ की तरफ आ जाती है, तो उसको कोई भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता है. ऑलराइट, तो ये पहली पोजीशन है हमारे पास कि जिसमें एयर जो है वो इजीली गुजर कर हमारे माउथ तक चली जाती है. तो ये बिल्कुल ओपन होते हैं, इनके दरमियान स्पेस जो है वो बिल्कुल खुली हुई होती है. ठीक है, दूसरी जो पोजीशन हमारे पास होती है तो उसमें क्या होता है कि ये जो इनके दरमियान में हमारे पास स्पेस होती है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाती है. My drawing is not that good, you can see it on internet. So इनके दरमियान जो स्पेस है, मतलब हम उनको काफ़ी ज़्यादा क्लोज ले आते हैं वोकल फोल्ड्स को आपस में. ठीक है, तो दरमियान में जो स्पेस है वो बहुत ही थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर बच जाती है. अब चूंकि स्पेस बहुत ही थोड़ी सी होती है, तो क्या होता है कि जब एयर जो है हमारे लंग्स से यहाँ पर पहुँचती है तो उसके गुजरने के लिए पैसेज जो है वो बहुत ही छोटा होता है. तो इस तरह क्या होता है कि एयर जो है फ्रिक्शन खाते हुए यहाँ से बाहर की तरफ आती है. इट कॉजेज फ्रिक्शन, मतलब रगड़ जो है वो प्रोड्यूस होती है, क्योंकि पैसेज जो है वो इतना ज़्यादा ओपन नहीं है कि एयर फ्रीली यहाँ से बाहर की तरफ जा सके. सो एयर कॉजेज फ्रिक्शन, लेकिन स्टिल इट कम्स आउट. ठीक है, चाहे वो ज़बरदस्ती ही बाहर की तरफ आ रही है, लेकिन फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हुए एयर जो है वो बाहर की तरफ आ ही जाती है. पैसेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो है हमारे पास. That is the second position in which we can have these vocal folds. ठीक है, जो थर्ड पोजीशन होती है हमारे पास, तो उसमें मज़ीद हम पैसेज जो है वो नैरो कर देते हैं. एंड these vocal folds touch each other. ठीक है, मतलब उनको आपस में हम मिला देते हैं, वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं. सो वी क्लोज आवर वोकल फोल्ड्स, उनको हम बंद कर देते हैं. ठीक है, however we do not close them very tightly. ठीक है, बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ जो है हम उन्हें बंद नहीं करते हैं. सो दीज आर merely टचिंग ईच अदर. ठीक है ना, वो बिल्कुल बहुत ही सॉफ्टली एक दूसरे को सिर्फ जो है वो टच कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती से हम उन्हें क्लोज नहीं करते हैं. सो वी क्लोज देम सॉफ्टली. जिस तरह आपके लिप्स हैं, यही जो लिप्स हैं, तो आप उन्हें टाइटली भी बंद से कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्टली भी उनको बंद कर सकते हैं. ठीक है, तो ये थर्ड पोजीशन जो है, तो इसमें वोकल फोल्ड जो हैं दे आर टचिंग. ठीक है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं लेकिन सख्ती के साथ बंद नहीं है. ओके, अब इसमें क्या होता है कि जब एयर प्रेशर जो है वो ऑब्वियसली लंग्स से ऊपर की तरफ डेवलप होता है, सो दिस प्रेशर फोर्सेस वोकल फोल्ड्स टू ओपन. ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से एयर जो है वो आ रही है हमारे लंग्स में से, तो ये जो वोकल फोल्ड्स हैं उनको ज़बरदस्ती एयर जो है वो खोल देती है. ठीक है, जैसे ही वो एयर का जो आपके पास झोंका है वो यहाँ से गुजर जाता है, तो ये वोकल फोल्ड दोबारा से बंद हो जाते हैं. फिर जो प्रेशर है लंग से वो ऊपर की तरफ आता है, फिर उनको फोर्स करके ओपन कर देता है. जब वो गुजर जाता है तो फिर वो बंद हो जाते हैं.
ये जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जब होता है, इट काजेज वाइब्रेशन, इट काजेज वोकल कॉर्ड्स टू वाइब्रेट, क्योंकि बार बार वो खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वाइब्रेशन, इर्ताश पैदा होता है, सो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग वोकल फोर्ड्स। That is the third position in which we can have our local fourth. फोर्थ जो पोजीशन है तो उसमें हम वोकल फोर्ड्स को बिल्कुल टाइटली क्लोज कर देते हैं। So when you tightly close them, there is no passage for air to escape. ठीक है, जब तक आप खुद उसको ओपन नहीं करते हैं, एयर जो है वो खुद से उनको ओपन नहीं कर सकती है। जो थर्ड पोजीशन थी तो वो चूंकि सॉफ्टली एक दूसरे को टच कर रहे थे सिर्फ, तो एयर जो है वो उनको खोल सकती थी, ठीक है ना। अब चूंकि बहुत ही टाइटली हमने क्लोज किया हुआ है, लिहाजा एयर जो है वो उनको ज़बरदस्ती फोर्स करके ओपन नहीं कर सकती है, ठीक है। सो दैट इज द फोर्थ पोजीशन। Okay, are you understanding what I am saying? अब ये जो चार पोजीशंस हैं हमारे पास, ठीक है ना, तो इसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। जो पहली पोजीशन है जिसमें एयर पैसेज जो है वो बिल्कुल ओपन है, वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो वाइड अपार्ट हैं, बिल्कुल खुले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ इस पोजीशन से एयर जब गुजर कर हमारे माउथ में आती है और हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सो सच साउंड्स आर कॉल्ड वॉइसलेस साउंड्स, वॉइसलेस साउंड्स, क्योंकि एयर पैसेज जो है वो बिल्कुल ओपन है, ठीक है। सो देयर विल बी नो वाइब्रेशन, बिल्कुल ओपन होगा तो कोई वाइब्रेशन नहीं होगी, ठीक है, ना ही वो बार बार ओपन होंगे और बंद होंगे, सो देयर विल बी नो वाइब्रेशन। तो ऐसी साउंड्स के जिनमें वाइब्रेशन नहीं होती है वोकल फोर्ड्स की, ऐसी साउंड्स को हम वॉइसलेस साउंड्स कहते हैं। और इसके बरक्स ऐसी साउंड्स के जिनमें वोकल फोर्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट होते हैं, जो थर्ड पोजीशन में हमने कहा था, ठीक है। सो ऐसी साउंड जो हम प्रोड्यूस करेंगे जिसमें वोकल फोर्ड्स जो है वाइब्रेट कर रहे होंगे, ऐसी जितनी भी साउंड होंगी उनको हम कहते हैं वॉइस्ड साउंड्स। So when you produce a sound and your vocal folds start vibrating in the production of that sound, such sound is called voiced sound. So that's the difference between voiceless sound and voiced sounds. वॉइस्ड साउंड्स जितनी भी होंगी उनमें वोकल फोर्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट करेंगे, वॉइसलेस साउंड जितनी भी होंगी उनमें वोकल फोर्ड्स वाइब्रेट नहीं करेंगे। और वाइब्रेट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो बिल्कुल ओपन है, उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा ओपन स्पेस है एयर के गुजरने के लिए, और जब वो सॉफ्टली टच कर रहे होंगे तो फिर उनमें वाइब्रेशन होगी। बात की समझ आ रही है? ठीक है ना। ओके, अब इनको अगरचे हम बाद में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि कौन सी साउंड वॉइस है और कौन सी वॉइसलेस है। फिलहाल सिर्फ मिसाल के तौर पर अगर आप देख लें, फॉर एग्जांपल वी प्रोड्यूस अ साउंड पी जो आपके पास होता है, ठीक है, प पे जैसे उर्दू में है, एक ही चीज़ है, चाहे आप पी कहें या पे कहें, ठीक है। सो व्हेन वी प्रोड्यूस प, तो उसमें क्या होता है कि हम अपने लिप्स को बंद कर देते हैं और यहाँ से दोबारा जो है फिर उसको रिलीज करते हैं एयर को, तो जो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है पा, ठीक है। सेम इज द केस व्हेन वी प्रोड्यूस बी साउंड, पी बी, दोनों में सेम चीज हो रही है या नहीं? ठीक है, बी जब आप कहते हैं तो उसमें भी वही है ना, दोनों लिप्स को मुकम्मल तौर पे बंद कर देते हैं और फिर एयर को रिलीज करते हैं, तो हमारे पास ये साउंड प्रोड्यूस होती है पी बी, पी बी, ठीक है। दोनों में प्रोसेस जो है वो सेम है, तो इनमें डिफरेंस किस चीज का है फिर? वाइब्रेशन। इन विच साउंड योर वोकल फोर्ड्स वाइब्रेट? कौन सी साउंड है जिसमें वोकल फोर्ड वाइब्रेट कर रहे हैं? यस, बी और पी।
बी, यस आप लोग बी, एग्जैक्टली, ठीक है। अगर आप इसमें डिफरेंस को नोटिस करना चाहें ना, इसको कहकर देखें, तो जब आप कहते हैं पी और जब आप कहते हैं बी, तो आपको ऐसे फील होता है जैसे कानों में से एक एक एयर जो है वो रिलीज हो रही हो, ठीक है ना। कोई चीज़, कोई एक बज़ वाली फीलिंग जो है आपको अपने सर के अंदर फील होती है, एक भारी सी फीलिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है। जब आप कहते हैं पी, तो ऐसी कोई बज़ वाली फीलिंग जो है वो आपके सर के अंदर नहीं होती है। तो ये एक्चुअली वाइब्रेशन जो आपको अपने सर के अंदर फील हो रही है वो सर में नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर है। जो वोकल फोर्ड्स हैं वो एक्चुअली वाइब्रेट कर रही हैं। सो व्हेन वी से बी, वोकल फोर्ड्स वाइब्रेट। व्हेन वी से पी, वोकल फोर्ड्स डू नॉट वाइब्रेट। तो इनमें पैसेज अफेयर जो है वो ओपन होता है, कोई वाइब्रेशन नहीं होती है। यहाँ पर हमारे पास वाइब्रेशन होती है, ठीक है। सो ऐसी साउंड जिनमें वोकल फोर्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं, सच साउंड्स आर कॉल्ड वॉइस्ड साउंड। एंड ऐसी साउंड जिनमें वोकल फोर्स जो है वाइब्रेट नहीं कर रहे होते, तो ऐसी साउंड्स को हम वॉइसलेस साउंड्स कहते हैं। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। एक एक साउंड को हम डिस्कस करेंगे इसमें कि कौन सी वॉइस्ड है और कौन सी वॉइसलेस है। ओके, ये हो गए हमारे पास दो पोजीशंस, ठीक है। ये जो तीसरी पोजीशन है हमारे पास, कुछ साउंड हमारे पास ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हम वोकल फोर्ड्स को जो है एक दूसरे के साथ मिलाते तो नहीं है, लेकिन पैसेज जो है वो हम बहुत ज़्यादा नैरो यहाँ पर कर देते हैं। सो यहाँ से एयर जो है वो फ्रिक्शन खाते हुए बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है। ऐसी कौन सी साउंड है कि जो यहाँ पर आपको फ्रिक्शन फील होती है जब प्रोड्यूस करते हैं आप? यहाँ पर हलक से, थ्रोट में आपको जो फील हो रहा हो कि यहाँ से एयर जो है उसका रास्ता नैरो किया जा रहा है। किरात अगर आपने पढ़ी हो तो हलक से कौन सी आवाज़ प्रोड्यूस होती थी? हाँ, H, isn't it? So when you say her, it is here. वोकल फोर्स जो हैं वो नैरो हो जाते हैं और यहाँ से हवा जो है वो फ्रिक्शन खाते हुए बाहर की तरफ निकलती है। H साउंड, ओके। तो ये हमारे पास थर्ड, ये जो सेकंड पोजीशन थी जब व्हेन दे आर नैरो। फोर्थ जो पोजीशन होती है कि जिसमें वो टाइटली क्लोज्ड होते हैं, तो एज सच कोई मीनिंगफुल साउंड जो हैं वो यहाँ से प्रोड्यूस नहीं होती हैं, ठीक है। आल्दो कुछ वैरायटीज़ हैं अंग्रेज़ी की कि जिसमें यहाँ पर आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। ऐसी साउंड जो होती हैं उनको हम कहते हैं ग्लॉटल स्टॉप, ठीक है। लेकिन इंग्लिश की जो स्टैंडर्ड वैरायटीज़ हैं उसमें ऐसी कोई भी साउंड्स नहीं है कि जिसमें वोकल फोर्स को टाइटली क्लोज करके साउंड्स को प्रोड्यूस किया जा सके। बट यू मस्ट नो कि देयर इज साउंड विच इज़ कॉल्ड ग्लॉटल स्टॉप, जो इस तरह प्रोड्यूस की जाती है कि आप वोकल फोर्स को टाइटली क्लोज कर देते हैं। यस, वो हम उस वक्त आएंगे जब हम डिफरेंट मैनर्स को डिस्कस करेंगे। फिलहाल वो फ्रिक्शन जो आप कह रहे हैं फ्रिकेटिव साउंड, तो वो आपके माउथ के अंदर भी फ्रिक्शन हो सकती है और यहाँ पर भी हो सकती है, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शन हो रही है ये यहाँ पर हो रही है, ग्लॉटिस में हो रही है, ठीक है। सो इट इज़ अ फ्रिकेटिव साउंड, लेकिन ये ग्लॉटिस के लेवल पर हो रही है, माउथ के अंदर नहीं हो रही है। बाद में जो हम फ्रिकेटिव साउंड देखेंगे तो वो माउथ के लेवल पर आपका आपके जो ऑर्गन्स हैं जैसे टीथ हैं या लिप्स हैं, यहाँ से फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होगी, ओके। सो दीज आर 4 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ वोकल फोर्स के जिनके ज़रिए हम आवाज़ें प्रोड्यूस करते हैं। यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन वॉइस्ड साउंड एंड वॉइसलेस साउंड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ये सारा आपको समझाने का मकसद था। ये डिफरेंस जो है वॉइस साउंड एंड वॉइसलेस साउंड, तो ये ध्यान के अंदर रखें कि जब वोकल फोर्स वाइब्रेट कर रहे हैं
तो उस वक्त जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसको हम वॉइस साउंड्स कहते हैं। उस वक्त हमारे वोकल फोल्ड जो हैं दे आर टचिंग ईच अदर और उनमें वाइब्रेशन पैदा होती है। और ऐसी साउंड्स के जिसमें वोकल फोल्ड जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से डिस्टेंस पर होते हैं, कोई वाइब्रेशन नहीं होती, उनको वॉइसलेस साउंड्स कहा जाता है। ठीक है, ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड हैं हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो लैरिंक्स के बाद अगरचे हमारे पास फेरिंक्स भी आता है, लेकिन साउंड प्रोडक्शन में उसका रोल कोई इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है। सो हम उससे आगे की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास, वी कॉल देम आर्टिकुलेटर्स। तो दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, कोई एक चीज़ नहीं है बल्कि इकट्ठे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं जिनको हम आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। जो कि हमारे माउथ से लेकर चले जाते हैं पीछे की तरफ हमारे थ्रोट की तरफ। ठीक है, ये सारे ऑर्गन या थ्रोट से आगे की तरफ जो ऑर्गन है, सो दे आर कॉल्ड आर्टिकुलेटर्स। तो इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम आउटसाइड द माउथ, तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो आती है, दीज आर आवर लिप्स। ठीक है, so we have two lips, upper lip and lower lip. Both are involved in the production of sound. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने कहा था कि P और B ये दोनों साउंड जो हैं हम अपने लिप्स की मदद से प्रोड्यूस करते हैं। कि एयर को हम लिप्स के मकाम पर रोकते हैं, हम दोनों लिप्स को बंद कर देते हैं, एयर पैसेज जो है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, फिर इन दोनों को हम खोलते हैं तो एयर जो है वो रिलीज होती है। तो ऐसी साउंड्स के जो दोनों, जिनमें आप दोनों लिप्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपर और लोअर लिप, ऐसी साउंड्स को हम कहते हैं बाइलेबियल साउंड्स। Bilabial मतलब both the lips are involved in it. And one more thing, that the place where you modify the passage of air, ठीक है, उस जगह जहाँ पर आप पैसेज ऑफ एयर को मॉडिफाई करते हैं, रोकते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने कहा कि P और B जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो दोनों लिप्स के मकाम पर हम पैसेज ऑफ एयर को रोकते हैं, एयर को हम रोकते हैं, उसे ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसी साउंड जो है, इनकी प्लेस क्या है, हम कहते हैं कि प्लेस के एतबार से दीज आर बाइलेबियल साउंड्स। सो P एंड B बोथ आर बाइलेबियल साउंड्स, क्योंकि इनकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, बोथ द लिप्स। ठीक है, दोनों लिप्स जो हैं यहाँ पर हम पैसेज ऑफ एयर जो है उसे ब्लॉक कर रहे हैं। सो द प्लेस वेयर यू मॉडिफाई द पैसेज ऑफ एयर, मॉडिफाई द एयर स्ट्रीम, दैट प्लेस इज कॉल्ड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। तो हम ये प्लेस जो है साथ साथ देखते चले जाएंगे कि हर साउंड की प्लेस कौन सी है। अगेन किरात, इफ़ यू रिमेंबर, मखरज कहा जाता था, जहाँ से आप साउंड जो है माउथ के अंदर जिस जगह पर आप एयर स्ट्रीम को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, तो उर्दू में उसे मखरज कहा जाता है। तो इसको प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन हम कहते हैं। तो लिप्स जो हैं डिफरेंट साउंड्स को प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, लिप्स जो हैं या तो वो आपस में मिलकर साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अभी हमने P और B साउंड के एग्जांपल ली थी, या फिर आपके जो लिप्स होते हैं वो टीथ के साथ मिलकर मुख्तलिफ साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल साउंड जो है हमारे पास फ, एफ, ठीक है, फ,
तो इसमें कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? यस, कौन से टीथ? यस, अपर टीथ एंड लोअर लिप। यस, अपर टीथ एंड लोअर लिप। तो यहाँ से ये जो है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, ठीक है। एक तो दोनों लिप्स तो हमने कहा था बाइलेबियल, वो साउंड हो गए प्लेस के एतबार से। ये दूसरी अब आपके पास प्लेस आ गई है कि लिप्स जो हैं वो जो लोअर लिप है वो अपर टीथ के साथ मिलकर भी मुख्तलिफ साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है, जस्ट लाइक एफ जो हमारे पास साउंड होती है, ठीक है। तो ऐसी जो साउंड्स होंगी जिसमें अपर टीथ और लोअर लिप इन्वॉल्व होंगे, तो उनकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन या उन साउंड्स को हम कहेंगे कि दीज आर लेबियो डेंटल साउंड्स। लेबियो फॉर लिप्स, डेंटल फॉर टीथ। तो फ इज अ लेबियो डेंटल साउंड। एफ या उर्दू में जैसे फे, एक ही चीज है। तो लिप्स जो हैं दो तरह से साउंड्स को प्रोड्यूस करने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। एक तो आपके पास जो है लिप्स दोनों, अपर लिप लोअर लिप, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती हैं। या फिर हमारे पास जो है अपर टीथ और लोअर लिप ये आपस में मिलकर साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसी साउंड की प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो है हम कहते हैं कि इट इज़ लेबियो डेंटल साउंड, ठीक है। लिप्स से मज़ीद अगर हम अंदर की तरफ जाएं तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है, दीज आर आवर टीथ। टीथ का अभी हमने देखा है कि किस तरह से लोअर लिप के साथ मिलकर फ साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे टीथ जो हैं वो हमारी ज़ुबान के साथ मिलकर भी डिफरेंट साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ओके। ऐसी कौन सी साउंड है कि जिसमें अपर टीथ और हमारी टंग जो हैं वो करीब आते हैं या आपस में मिलते हैं? द, यस। फॉर एग्जाम्पल वर्ड, किसी वर्ड के अंदर दैट, दिस, ठीक है। सिमिलरली थ, थिन, ठीक है ना, यस। ये जो साउंड है हमारे पास, तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपके कौन से आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके टीथ और टंग, और टीथ में भी अपर टीथ, ऊपर वाले दांत जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, ठीक है। तो ऐसी साउंड्स के जिसमें आपके टीथ इन्वॉल्व होते हैं प्लस टंग आपकी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ऐसी जो साउंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं डेंटल साउंड्स। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो है उनकी क्या हो जाएगी? डेंटल, ठीक है। ये सारी साउंड को बाद में बाकायदा चार्ट बनाकर हम देखेंगे। फिलहाल सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं तो इनका रोल क्या होता है स्पीच के अंदर या मुख्तलिफ साउंड प्रोडक्शन के अंदर। तो ऐसी साउंड के जिसके अंदर टंग इन्वॉल्व होती है और अपर टीथ इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी साउंड्स को हम डेंटल साउंड्स कहते हैं, टीथ के हवाले से डेंटल, ठीक है। सो टीथ जो हैं वो भी हमारे पास साउंड प्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। मुख्तलिफ साउंड जो हैं वो यहाँ से प्रोड्यूस की जाती हैं, ओके। टीथ से भी मज़ीद हम पीछे की तरफ अगर मूव करें, इफ़ यू मूव योर टंग, ठीक है, ऊपर टंग को अगर आप दांतों से जो हैं वो पीछे की तरफ ले जाएं तो जहाँ से आपके गम्स स्टार्ट होते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। एक तो बाहर वाले गम्स हैं ये तो नज़र आ रहे हैं, जो टीथ के अंदर की तरफ ऊपर, टीथ से ऊपर जो है जहाँ से गम्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप फील करें अपनी टंग के ज़रिए तो आपको एक उभरी हुई जगह जो है ज़रा सी फील होती है, जस्ट लाइक अ रिज, ठीक।
लगाएं जबान अपनी टीथ से ऊपर जहाँ से गम स्टार्ट हो रहे हैं, फील हो रही है? ठीक है, ये जो रिज है इट इज कॉल्ड एल्वीलर रिज। Alveolar ridge is also involved in the production of sound। और ये जो alveolar ridge है ये भी हमारी टंग के साथ मिलकर मुख्तलिफ साउंड्स को प्रोड्यूस करती है। ओके, एनी साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय टंग एंड alveolar ridge? ल, यस, ठीक है, एल भी है, और डी, यस, ठीक है, द। द जब आप कहते हैं तो आपकी टिप ऑफ द टंग इज टचिंग एल्वीलर रिज। क्या कर देखें, द, इज इट? ठीक है, तो जहां पर आपकी टंग टच कर रही है दैट इज कॉल्ड एल्वीलर रिज, दांतों से ऊपर। ठीक है, ये जो रिज है तो दैट इज एल्वीलर रिज। सो ऐसी साउंड्स के जिसमें टंग और एल्वीलर रिज इन्वॉल्व होती है, ऐसी साउंड्स को हम एल्वीलर साउंड्स कहते हैं। ठीक है, सिंपल, जो एल्वीलर रिज से प्रोड्यूस होंगे, एल्वीलर रिज प्लस टंग, तो ऐसी साउंड्स को हम एल्वीलर साउंड्स कहेंगे। हम कहेंगे कि इनकी जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है दैट इज एल्वीलर। अब समझ आ रही है ना कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन से क्या मुराद है? अब देखें ना कि हमने जो जब डी प्रोड्यूस किया तो हमारी जो जगह थी पैसेज ऑफ एयर को स्टॉप करने की, इट वाज एल्वीलर रिज एंड टंग। ठीक है, यहाँ पर हमने पैसेज ऑफ एयर को स्टॉप किया। इसी तरह से जब आपने था साउंड कहा था तो उसमें आपने दांतों वाली जो जगह है यहाँ पर पैसेज ऑफ एयर को मॉडिफाई किया है, लिहाजा उसको हमने डेंटल जो साउंड है वो कह दिया है। तो जिस जगह पर पैसेज ऑफ एयर को आप रोकेंगे या मॉडिफाई करेंगे उस जगह को प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं। सो इस जगह प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के एतबार से वी हैव बाइलेबियल साउंड्स, we have labiodental sounds, we have dental sounds, we have alveolar sounds। ओके, तो ये जो alveolar रिज है, जो अपर ऑब्वियसली alveolar रिज है, ये हमारे पास मुख्तलिफ साउंड की प्रोडक्शन में यूज़ होती है और ये टंग के साथ मिलकर साउंड्स को प्रोड्यूस करती है। जिस तरह जो हमारे टीथ हैं वो भी टंग के साथ मिलकर मुख्तलिफ साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसी तरह से जो एल्वीलर रिज है वो भी टंग के साथ मिलकर मुख्तलिफ साउंड्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ओके, एल्वीलर रिज से भी थोड़ा सा मज़ीद पीछे की तरफ या यूँ कह लें कि ऊपर की तरफ अगर आप मूव करें, ठीक है, तो ये जो रिज है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो एक धंसी हुई जगह आती है। वो धंसी हुई जगह क्यों आती है? क्योंकि हमारा जो माउथ का स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है ना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर एल्वीलर रिज है तो आगे आप देखते हैं कि ज़रा सा एक धंसी हुई जगह आती है, क्योंकि वो माउथ जो है वो आगे की तरफ होता है हमारा, तो ये जो जगह नज़र आ रही है, ठीक है, जो आपके पैलेट और एल्वीलर रिज के दरमियान में है। पैलेट जो है बिल्कुल आपके माउथ का ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, या दरमियानी हिस्सा यूँ कह लें, तो पैलेट और एल्वीलर रिज इसके दरमियान में रीजन है एक। ठीक है, इस रीजन को हम कहते हैं पोस्ट एल्वीलर रीजन और रिज। We also call it palato-alveolar region, मतलब पैलेट और एल्वीलर रिज के दरमियान वाला हिस्सा। तो पैलेटो एल्वीलर रीजन और पोस्ट एल्वीलर रीजन, पोस्ट मतलब बाद में आने वाला, यानी एल्वीलर रिज के बाद में आने वाला जो हिस्सा है दैट इज पोस्ट एल्वीलर रीजन। सो ये जो हमारे पास पोस्ट एल्वीलर रीजन है ये भी टंग के साथ मिलकर तो नहीं, लेकिन टंग को क्लोज करके,
ठीक है, टंग और पोस्ट एल्विलर रीजन, ये एक दूसरे के साथ जब क्लोज आते हैं तो कुछ साउंड्स जो हैं वो हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं. सो एनी साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस रीजन, यस, श, शीन. अब देखेंगे जब आप शिप जैसे पहले साउंड, ठीक है ना, सो श या उर्दू में शीन जो होता है, तो उस जब आप श प्रोड्यूस करते हैं आपकी टंग जो है वो कर्व हो जाती है. ऐसा हो रहा है या नहीं? ठीक है. और वो टंग का जो टिप से पीछे वाला हिस्सा है, इट कम्स क्लोजर टू दिस पोस्ट एल्वीलर रीजन. ठीक है ना. तो आपकी टंग से टिप से ज़रा सा जो पीछे वाला हिस्सा है वो कर्व होता है, ठीक है, और वो पोस्ट एल्वीलर रीजन के करीब आता है, और यहाँ से एयर जो है वो आगे की तरफ फ्रिक्शन खाते हुए बाहर निकल रही है. श, श, देख रहे हैं? कैन यू फील इट? ठीक है. तो ये दोनों ऑर्गन्स जो हैं एक दूसरे के करीब आते हैं, पैसेज ऑफ एयर नैरो हो जाता है, यहाँ से एयर जो है वो फ्रिक्शन खाते हुए बाहर निकल रही है. सो श, ये ऐसी साउंड है जो इस पोस्ट एल्विलर रीजन से प्रोड्यूस की जाती है. ऑब्वियसली टंग जो है वो उसके करीब आती है. तो ऐसी साउंड्स जो यहाँ से पोस्ट एल्विलर रीजन और टंग के जरिए प्रोड्यूस की जाती हैं, सच साउंड्स आर कॉल्ड पोस्ट एल्विलर साउंड्स और पैलेटो एल्विलर साउंड्स. ठीक है, इस रीजन के नाम से ही इन साउंड को हम नाम देते हैं. तो यू कैन कॉल देम पोस्ट एल्विलर साउंड और पैलेटो एल्विलर साउंड्स. ओके, क्लियर है ना? कोई मसला तो नहीं हो रहा है? इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन आप किसी भी वक्त पूछ सकते हैं. ओके, ज़रा सा मज़ीद अगर हम पीछे की तरफ जाएं, ठीक है, तो हमारा जो माउथ का हिस्सा है जो आमतौर पर जिसे हम हार्ड पैलेट कहते हैं, हार्ड पैलेट सुना होगा आपने, ठीक है, जो मुंह का बिल्कुल ऊपर 90 डिग्री पर हिस्सा है, ठीक है, मुंह का बिल्कुल दरमियानी हिस्सा, यानी पोस्ट एल्विलर रीजन से भी आप ऊपर की तरफ चले जाएं तो मुंह का बिल्कुल दरमियानी हिस्सा है, सख्त हिस्सा है, ठीक है, बोनी जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड हार्ड पैलेट. तो हार्ड पैलेट और टंग यहाँ से भी डिफरेंट साउंड जो है हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, अगेन वो एक दूसरे को टच तो नहीं करते हैं लेकिन वो क्लोज आते हैं एक दूसरे के. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट साउंड इन द वर्ड यस, ये वाली आवाज़ जो होती है यस के अंदर पहली साउंड कौन सी है? ये. ठीक है, तो जब आप कहते हैं ये तो आप देखें कि आपकी टंग का जो दरमियानी हिस्सा है वो कर्व हो रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, आपके हार्ड पैलेट के क्लोज वो जाता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं जाता है लेकिन ज़रा सा उठकर हार्ड पैलेट के वो क्लोज आता है, यहाँ से एयर जो है वो गुजरती है. ठीक है, तो ऐसी साउंड्स के जिनमें हार्ड पैलेट और टंग इन्वॉल्व होती है, सच साउंड्स आर कॉल्ड पैलेटल साउंड्स. So such sounds are called palatal sounds. ओके, कुछ आर्टिकुलेटर्स जो हैं वो मज़ीद रहते हैं तो उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे. मेरी कोशिश तो थी कि आज ख़त्म हो जाए लेकिन बहरहाल उनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाएगा. सो यहाँ हम जो है वो रोक रहे हैं अपनी डिस्कशन को. नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी नेक्स्ट वीक तो उसमें मज़ीद हम जो आर्टिकुलेटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे कि एक एक साउंड को हम देखेंगे कि उसमें उसकी प्रोडक्शन के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है. यहाँ पर तो हमने वैसे ही कह दिया है कि आप जो है ये साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है. तो इंग्लिश के अंदर जितनी भी हमारे पास साउंड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि उनके पीछे क्या प्रोसेस चल रहा होता है और ये आर्टिकुलेटर्स और ये स्पीच ऑर्गन्स किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी प्रोडक्शन में.
ठीक है। एक और चीज़ कि जब हम फोनेटिक्स को डिस्कस करते हैं सो वी यूज़ फोनेटिक सिंबल्स। आपके पास जो अल्फ़ाबेट है, ठीक है, वो आप राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। फोनेटिक्स में हमारे पास अलहदा से अल्फ़ाबेट है विच इज़ कॉल्ड फोनेटिक अल्फ़ाबेट। सो हम उस फोनेटिक अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बल्कि इसका जो पूरा नाम है इट इज़ IPA, स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, IPA। तो ये इंटरनेशनल है, मतलब सारी दुनिया के अंदर जो भी ज़ुबानें हैं उनमें जो भी साउंड्स पाई जाती हैं तो उनके लिए यूनिवर्सली ये सिंबल्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस IPA में ज़्यादातर सिंबल जो हैं वही अंग्रेज़ी के जो छोटे लेटर्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। कुछ मैथमेटिक्स से भी सिंबल्स जो हैं वो लिए गए हैं, ज्योमेट्री से कुछ सिंबल दिए गए हैं। तो इस तरह से डिफरेंट सिंबल्स जो हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे। हर साउंड के लिए अलग-अलग हमारे पास जो हैं वो सिंबल्स मौजूद हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम कह रहे थे श वाली आवाज़, तो श के लिए ये वाला सिंबल जो है हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो बी होता है उसके लिए छोटा बी हम इस्तेमाल करते हैं, वही इंग्लिश वाले जो लेटर्स होते हैं। तो जब हम इन साउंड को डिस्कस करेंगे तो हम IPA इस्तेमाल करेंगे। हर साउंड के जो सिंबल्स हैं वो आपको ज़रूर सीखने हैं। अगर आपने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखी हो तो आप देखते हैं कि लफ्ज़ के आगे जो है स्लैश के अंदर जो है कोई सिंबल्स लिखे हुए होते हैं। दीज आर फोनेटिक सिंबल्स, ठीक है। तो वो फोनेटिक सिंबल्स जो हैं इसलिए लिखे जाते हैं ताकि आपको उस लफ्ज़ का प्रोनाउंसिएशन जो है वो समझ में आ जाए। क्योंकि जो हम लेटर्स लिखते हैं तो उसमें प्रोनाउंसिएशन को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक ही लेटर जो है वो डिफरेंट साउंड्स के लिए इस्तेमाल, जैसे ए है तो ए जो है कभी आप कहते हैं फादर तो उसमें आ की आवाज़ दे रहा है, इस तरह से है ना, ठीक है। और जब आप कहते हैं फैट तो उसमें डिफरेंट आवाज़ कैट, ठीक है, ए की आवाज़ दे रहा है उसके अंदर। तो इसी तरीके से आप देखते हैं कि बाकी जो आपके पास लेटर्स हैं, एक ही लेटर जो है बहुत सारी साउंड्स के लिए इस्तेमाल जो है वो हो रहा होता है, या एक ही साउंड के लिए बहुत सारे लेटर्स जो हैं वो आपके पास इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो इसलिए ये जो अल्फ़ाबेट है ये रिलायबल नहीं है, उससे आपको प्रोनाउंसिएशन का अंदाज़ा नहीं होता है। तो जो फोनेटिक आपके पास लेटर्स हैं तो उसमें हर साउंड के लिए सिर्फ एक ही सिंबल है। ये नहीं है कि एक सिंबल को आप बहुत सारी साउंड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हर साउंड के लिए एक ही सिंबल है, लिहाजा वहाँ से प्रोनाउंसिएशन जो है आप इजीली उसको समझ सकते हैं। तो इसलिए डिक्शनरी जो है वो आगे आपको फोनेटिक सिंबल में प्रोनाउंसिएशन बताती है, ठीक है। सो इसको भी साथ साथ हम देखते रहेंगे कि कौन से सिंबल्स जो हैं इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट जो क्लास हमारी स्टार्ट होगी तो उसके शुरू में भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये जो 3 दिन की हमारी डिस्कशन हुई है। ऑलराइट, ओके।